तो क्लास अटेंड नहीं करेंगी लास्ट सर सर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी सर, उससे पढ़ा था। ओके एनीबडी एल्स आर यू ऑल सेटिस्फाइड विद योर अकाउंट्स मार्क्स Yes, sir. वेरी गुड So shall we start now? Today we have 2 periods. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Chalo. So which question should I take up today? I will tell you today the sale of machinery. How we sell the. In the previous classes, we have discussed about how the machinery has been, fixed assets has been purchased, how the depreciation has been charged. Today we are going to discuss how we sell those assets. So we shall start from question number. One second. Question number 4. We will start from question number 4. Question number 4. Machinery account. Please open your book. Please open your book. Question number 4. Page number 14.49. Page number 14.49. Question number 4. Depreciation. And read the question. Machinery account. Wait a minute. Yes. Yes. So on 1st April, A Limited purchased a machinery for 2,40,000 and spent on 10,000 on its erection. Clear? So on 1st April 2014, I'm telling you again that dates are very important. To bank account, as you all know, 2,40,000 की machine खरीदी है and 10,000 is expend on its installation. So machine आपकी है 2,50,000 and we are charging depreciation. देखिए last time में लिखा है show the machinery account for the first 4 financial years after charging depreciation of at the rate 5% per annum. ठीक, तो 5% and next machinery is purchased on 1st October. अब देखिए इसका year end कब हो रहा है? 1st April को 2000 year end हमेशा 31st मार्च को होता है. तो 1st April के बाद 31st मार्च कब आएगी? 2015 में ही आएगी, उसके पहले तो नहीं आएगी. 31st March is the end of the year, end of the financial year. Next machinery इन्होंने 8 अक्टूबर 14 में परचेज की है. They are purchased on 1st October and additional machinery costing 1 lakh was purchased. So 1st October to bank account 1 lakh. तो अब इनके पास कितनी मशीनें हो गई?
फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, पहली मशीन और दूसरी मशीन, ठीक है। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 1 and 2, पहली मशीन पे 5% डेप्रीसिएशन लगेगा, कितना आ जाएगा 2,50,000 का 5% इज 12,500। दूसरी मशीनरी देखिए, आप ये ध्यान रखिए, अगर आप डेट ध्यान रखेंगे और एक मशीन इस फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ्स यूज हुई है ये ध्यान रखेंगे। तो ये 1 अक्टूबर को खरीदी गई थी, अब इसको 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो कितने मंथ्स यूज हुई है 6 मंथ, 6 मंथ्स यूज हुई है, तो इसका 5% इज 5,000 और 6 मंथ का आपको निकालना आता है ना 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, कैसे निकालेंगे देखिए 1 लाख का 5% into 6 by 12, so this will be 2,500, got it? 6 months का depreciation, that is 2,500. So on 31st March, by balance carried down, पहली मशीन और दूसरी मशीन दोनों को हम अलग अलग करके देखेंगे। पहली मशीन थी 2,50,000 की, उस पे 12,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, अब कितनी की बचेगी 2,37,500। सेकंड मशीन थी 1 लाख की एंड इस पे 2,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, नाउ इट्स कॉस्ट विल बी 97,500। If you all are not getting this, please let me know. Total will be 3,50,000 and 3,50,000. If there is any confusion in this financial year, please let me know. Any one of you, if you have any confusion, please. Got it? Okay. Yes. Now the next year. Yes. (2015). Okay, this year ends on 31st March 2015. Next year will start on 1st April 2015. To balance brought down 1 and 2. 2,37,500 and 97,500. यहाँ पर कैरेट डाउन था, नेक्स्ट ईयर में आपके ब्रॉट डाउन हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ 2015, अब दिस ईयर विल एंड ऑन 1st April 2015 से स्टार्ट हुआ है एंड इट विल एंड ऑन 2016 31st March. Okay. By depreciation account 1 and 2. अब देखिए यहाँ पर 5% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड लग रहा है, यानी डेप्रिसिएशन इस पे ही लगेगा और 5% ही लगेगा। That means 12,500 and 1 लाख का 5% is 5,000। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर सेकंड मशीन का 2,500 लगा था और यहाँ 5,000 क्यों लगा? फर्स्ट ईयर में जब हमने इसको परचेज की थी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स का लगा था, यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च दोनों मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 and 2। देखिए फर्स्ट मशीन कितने की थी 2,37,500, इस पे 12,500 का डेप लग जाएगा, इट वुड बी 2,25,000 एंड 97,500 की मशीन थी, इस पे 5,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा,
तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 92,500. क्लियर? सेकंड ईयर इज क्लियर? Yes, sir. गुड. बीच बीच में रिप्लाई देते रहा कीजिए बेटे. Total is 3,35,000. This means this year ends. Now the next year begins. 2016 1st April. This year ends on 31st March 2016 and the next financial year will start on 1st April 2016. To balance brought down 1 and 2. ठीक है? 2,25,000 and 92,500. ठीक है? अब देखिए यहां पर ईयर एंड कब होगा ये वाला 2017 31st मार्च. लेकिन यहां कह रहा है कि 1st अक्टूबर 2016 थर्ड लाइन on 1st October 2016 the machinery purchased on 1st April was sold. तो इसके बाद आएगा 2016 1st अक्टूबर. 1st अक्टूबर को वो मशीन बेच दी गई जो कि 1st अप्रैल को खरीदी गई. दैट मींस फर्स्ट मशीन. तो जब हम खरीदते हैं तो टू बैंक, जब बेचेंगे तो यहाँ बाय बैंक. तो बाय पहले इस पे डेप्रिसिएशन लगा लें. डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब यहाँ पर फर्स्ट मशीन बेच रहे हैं. फर्स्ट मशीन बेच रहे हैं इसमें हम कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6 महीने का. क्यों? फर्स्ट इस फाइनेंशियल ईयर में इसको कितना यूज किया है हमने. इन दिस फाइनेंशियल ईयर 1st अप्रैल से 1st अक्टूबर. 1st अक्टूबर को तो ये बेच दी गई. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक यूज हुई है. 1st अक्टूबर को बेच दी गई. तो इसमें 6 महीने का डेप लगाएंगे. 2,50,000 का 5% 6 महीने का. आपको पता है कैसे निकालेंगे. 2,50,000 का 5% 6 मंथ्स का. ये आ जाएगा आपका 62. आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6250. ठीक है. तो पहले इसको 6 महीने का डेप लगा लिया. दैट इज 6250. और इसको हमने सेल कर दिया. यहां लिखा है सेल प्राइस 1,43,000 बाय बैंक अकाउंट 1,43,000. क्लियर? जब खरीदेंगे तो टू बैंक, जब बेचेंगे तो बाय बैंक. लेकिन उसके पहले, बेचने के पहले हम उस पर डेप्रिसिएशन लगा लेंगे. जिस ईयर में उसको बेच रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में हमने उसको कितना यूज किया है. हमने उसको अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक यूज किया है. दैट मींस 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा लिया. फिर हमने उसको बेच दिया. अब हम ये देखेंगे कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है. इस मशीन की कॉस्ट क्या थी 1st अप्रैल को? कॉस्ट क्या थी 2,25,000. इस पे हमने 6250 का डेप्रिसिएशन लगाया. 1st अप्रैल को कॉस्ट थी 2,25,000. इस पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया 6 महीने का. तो ये कितने की हो गई 0 5 7 8 1 2 2,18,750. ठीक है. यानी ये कॉस्ट जो हो गई वो 1 अक्टूबर की हो गई. 1 अक्टूबर को इस मशीन जो 2,25,000 की थी ऑन 1st अप्रैल, अब इसकी कॉस्ट 1 अक्टूबर को हो गई 2,18,750. गॉट इट? अब इसको हमने 1,43,000 में सेल कर दिया. तो कितने का? अब ये बताइए कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ. इज इट लॉस और प्रॉफिट? Sir, loss. लॉस. कितना लॉस हुआ 0,575 11 में से 4 7 7,5,750 का लॉस हो गया. क्लियर?
लॉस हम कैसे शो करेंगे यहाँ पर? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस 75750। तो ये इतना इजी सा है कि हम कैसे सेल करेंगे। सबसे पहले हम जितने मंथ्स यूज हुआ है उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा देंगे, सेल प्राइस आपको दी होगी बाय बैंक, उसके बाद इस तरीके से हम लॉस निकाल लेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो, अगर मान लीजिए ये मशीन 1,43,000 की जगह 2,50,000 की बेची जाती, इसकी कॉस्ट थी 2,18,750 और इसको हम 2,50,000 में बेचते तो 31,250 का प्रॉफिट होता। लॉस हम इधर दिखाते हैं, प्रॉफिट हम इधर दिखाते हैं। प्रॉफिट हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, यहाँ लिख देंगे 1 अक्टूबर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो 1 अक्टूबर टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट, और यहाँ लिख देंगे। क्लियर? लॉस होगा तो इधर लिख देंगे, प्रॉफिट होगा तो इधर लिख देंगे। ठीक है? ठीक है, 1 सेकेंड। देन अब ये हो गया। इसमें आगे क्वेश्चन में लिखा है ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर रुपीस 2 लाख। ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड, यानी सेम डे जिस डेट में इन्होंने ये मशीन बेची है, ऑन द सेम डेट it purchased another machine, we can say third machine for rupees 2 lakh. Got it? Then 2017, अब ईयर एंड कब होगा? ईयर स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2016। ईयर एंड कब होगा? 2017, 31 मार्च। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड एंड थर्ड। देखिए फर्स्ट मशीन तो बिक गई, फर्स्ट मशीन पे तो कोई डेप नहीं लगेगा क्योंकि वो तो यहाँ सेल हो गई है। क्लियर? नाउ सेकंड मशीन पे डेप कितना लगेगा? एनीबॉडी कैन टेल मी? हु इज दिस NS? NS, can anyone tell me what will be the depreciation on machine? NS? No one is going to answer. चलो देखिए सेकेंड मशीन पे 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा 5% पूरे साल का, क्योंकि ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यूज हो रही है। दैट इज 5,000। सेकेंड मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सॉरी थर्ड मशीन पे 1 मार्च, दैट इज 6 मंथ्स। तो 2 लाख का 6%, 5%, 10,000. व्हाट? Sir, 10,000. 10,000, लेकिन 6 मंथ्स का लगेगा ना बेटे। 2 लाख का 5% इज 10,000 एंड 6 मंथ्स का 5,000. 2 लाख का 5% 6 मंथ्स का। सो कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 5,000। ठीक है? नाउ 31st March, buy balance carried down
सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए 92,500 की मशीन है, इस पे 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। सेकेंड मशीन पे सेकेंड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, इट विल बी 87,500 एंड 2 लाख पे 5% डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे थर्ड मशीन पे। थर्ड मशीन खरीदी थी 2 लाख की, इस पे डेप्रिसिएशन लगाया 5,000, आंसर विल बी 1,95,000। इज इट क्लियर? यहाँ टोटल लिख देंगे। इसमें 4 साल का निकालने को कहा है, इस क्वेश्चन में 4 इयर्स का निकालने को कहा गया है। हमने फर्स्ट ईयर ये निकाल दिया, सेकंड ईयर ये निकाल दिया, थर्ड ईयर ये हो गया। नाउ द फोर्थ ईयर 2017 1st April, 2 balance brought down, second machine and third machine 87,500, 1,95,000. 2018 31st March by depreciation account, second and third। अब देखिए सेकंड पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 लाख का 5% पूरे साल, और थर्ड पे कितना लगेगा, 2 लाख का 5% पूरे साल का। क्योंकि देखिए ये 1 अप्रैल से इस फाइनेंशियल ईयर में हमने इसको कितना यूज किया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, दैट इज 2 लाख का 5%, दैट इज 10,000। नाउ 31 मार्च by balance carried down, second and third of 87,500 में 5,000 का गैप लग गया, it will be 82,500 and 1,95,000 में 10,000 का गैप लग गया, that is 1,85,000, and this is the end of the fourth year. So, is there any confusion to anyone in any part of this question? Yes, sir. Yes, tell me. Sir, I want to ask that in 2014, 1 April, we bought a machine. Yes. Then we used from 1 April 2016 to 1 October 2016. So, sir, we have. Which year? Yes, sir. No, sir. No, sir. ऊपर Yes, sir. We bought that time. we have bought first machinery on 1st April. Yes, sir. We are And then charging depreciation. First, see the first machine. yes, We sir. have bought on 1st April 2014. The financial year ends on 31st March. So we charge depreciation 5% on this first machine. 2,50,000 ka. See this only. First machinery is brought on 1st April 2014. Yes, sir. Depreciation charged on 31st March 5%. And the balance of first machine is 2,37,500. You got this? Yes, sir. Actually, I want to ask that, sir. We charged depreciation on 6 months as we have used from 1 April 2016 to 1 October 2016. So, sir, we bought the machine on 2014. So, sir, why we have On not? 1st October, bete. 1st October, second machine. Second machine we have bought on 1st October. No, sir, I'm not saying that. Yes, Sir. Phil. Sir, I'm saying that the first machine we bought on 1 April 2014. Then we used it from 1 April 2016 to 1 October 2016. Where is 16? We have brought it on 2014 and we are charging depreciation on 31st March 2015. Where is 16? Sir, I'm saying the third entry, the 2016 1 April. ये वाला. Yes, sir. So why Sure. we have charged 6 months of depreciation and not 2 year 6 months depreciation? Because we have bought before.
And one Okay. thing, बेटे 1 साल का डेप्रिसिएशन आपने यहाँ लगाया, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना। एक फाइनेंशियल ईयर का आपने 1 साल का यहाँ लगा दिया, उसके बाद उसका बैलेंस निकाल दिया। एक साथ 2.5 years का नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक साथ 2.5, यस। आपने 1 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ लगाया, फिर दूसरे साल का आपने यहाँ लगाया और हाफ ईयर का यहाँ पर लगाया और बैलेंस करते गए, yes, sir. ठीक है। एक साथ 2.5 years का नहीं लगाएंगे बच्चे, ठीक है ना। आपने 1 साल का लगाया और उसके बाद उसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस मतलब Yes. उसकी कॉस्ट रिड्यूस कर दी। फिर दूसरे साल का आपने यहाँ लगाया, फिर उसकी कॉस्ट रिड्यूस कर दी और फिर Yes. हाफ ईयर का आपने यहाँ। तो एक साथ 2.5 years का नहीं लगाएंगे। जिस साल बेचना है आप उस साल पे ध्यान दीजिए, आप उस साल आपने कितना यूज किया है, ओके। अब मान लीजिए ये 1 अक्टूबर की जगह मान लीजिए 1 नवंबर को बेच रहा होता, तो वो तो बेच तो कभी भी Sir, सकता है, Yes, ठीक है। आप एक एक ईयर करके देखिए, आप एक साथ पूरा मत लीजिए, ओके। एक Yes, साथ sir, that- पूरा लेने की जरूरत नहीं है। जो एक फाइनेंशियल ईयर देखा उसके बाद बैलेंस नीचे ले आए, फिर सेकंड फाइनेंशियल ईयर देखा फिर बैलेंस नीचे ले आए, फिर थर्ड फाइनेंशियल ईयर, फिर फोर्थ। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। नाउ इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. चलो, थैंक यू। Next period is also mine, so wait for 15 minutes, refresh yourself and come back within 15 minutes. Thank you. Thank you, sir.